So welcome student in the class of science of life, that is biology. Bio, life and science, that we deal with the modifications. So biology is the class of life. So today we will discuss the heredity. Okay. What is heredity? Heredity is the specific phenomena that is related with the transfer of genetic character from one generation to another generation. We know individuals are reproduced again and again. Then how they reproduce? What is there in the parent's body? What is there in the main body that transfer the characteristic like that into us? We are not exactly like our parents. We are differ because we are formed by the combinations of two, mother and father, and few individuals are exact carbon copy of their parents because they are formed by the single parents. They are called clones and we are called offsprings. We are the product, we are the hybrid, and they are the clones. They are also called rennet. Clones are also called rennet, R-N-E-T-T. Okay, so how these individuals are formed by, how we formed by our parents, and how the information that is present in the parents, that information like formation of two eyes, formation of hair, formation of hand. उनके दो हैंड थे, हमारे भी दो हैंड बने, उनके दो लेग्स थे, हमारे भी दो लेग्स बने. जो हमारी नॉर्मल फिजिक्स है, हमारी नॉर्मल बायोलॉजी है, वो उनके जैसी बन रही है, एग्जैक्ट हम उनके जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखने में नहीं, लेकिन हमारा जो बेसिक मॉर्फोलॉजी है वो उनके जैसा प्रोड्यूस हो रहा है. तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? दैट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज हेरिडिटी. Clear? And these heredity is related with the genes. Clear? Basically this concept of heredity is related with the genes. So first question is there, what is genes? Genes क्या होते हैं? So for to solve the confusion about the genes, first we understand about the cell. You know very well about the cell. Cell is the smallest structural and functional unit of life. It is the compartment-like structure, and each and every living organism made up by the cell, except viruses, because viruses are considered as the acellular organism. Few protistants are also considered as the acellular because definite cell structure is absent in that individual. So all the living organism, most of the living organisms made up by the smallest structural and functional unit, and that unit is called cell. We all know about this. So each and every cell has the specific genetic center. Okay, in few individual like bacteria, these genetic center is available in form of nuclei. Clear? So their genetic material, their genetic center is called nucleoid, whereas the genetic center of all the eukaryotic cell is called nucleus. Okay, so prokaryotic cells generally do not have nucleus, prominent nucleus, definite nucleus, but the eukaryotic cell have. But they both have genes, they both have genetic information, they both have the capability to transfer these genetic information into their offsprings with the help of heredity factors. And these heredity factors are genes. Okay, so inside these genetic center, we know the chromosomes are present in pair. Clear? We have 23 pair of chromosome in each cell of our body. हमारी body में जितनी भी cells है, near about 300 trillion cells we have, and all these cells have 23 pair of genes. Okay, so these 23 pair of chromosomes. So these chromosomes are the colorful stained thread-like bodies that is present inside the genetic center. When we see these chromosomes in the ultra microscope, electron microscope, we observe the small bead-like structures are present on the surface of chromosomes. Okay, so जैसे हमारी गले में पहनने वाली माला होती है और उसमें beads होते हैं, मोती लगे हुए होते हैं, just like that. And these bead-like structures are called genes that present on the surface of chromosome. Clear? When we open these genes, अगर आप इसको और थोड़ा expand view में देखेंगे, जब आप इसको open करेंगे, you observe these type of helical structure in these genes. Clear? So what these helical structure? These structure is the DNA.
So now concept is clear. What is genes? Genes are nothing. They are the segment of DNA. Basically, they are the DNA. They are the part of DNA where DNA highly condensed, coiled, and packed. And that bead-like structures are available on the surface of chromosome. Chromosome is also the structure that is formed by the DNA पैकेजिंग. जब डीएनए पैक होता है स्टोन प्रोटीन के साथ तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम हमको कॉमनली सेल में स्टडी के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होते. अगर क्रोमोसोम्स को प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर शेप में अगर आपको स्टडी करना है so the best stage is the cell division. Best condition is the cell division and stage is metaphase. Clear? So these chromosomes are the colorful stained thread like body and they have the small bead like structure, and these bead like structures are made up by the DNA. And what is the DNA? Now the question comes, what is DNA? So DNA is our hereditary material. DNA is our genetic material. Generally in nature, genetic materials are available in two forms. Genetic material, one is the RNA and another one is the DNA. Okay? One is RNA and another one is DNA. Clear? RNA is ribonucleic acid and DNA is deoxyribonucleic acid. Okay? So RNA is genetic material of most of the viruses basically, and DNA is the genetic material of all the individuals, those who are present on earth. Viruses also have genetic material DNA, but DNA is genetic material of most of the individual, whereas RNA is the genetic material of viruses only. So RNA ribonucleic acid and DNA is deoxyribonucleic acid. Both are the genetic material. So what is genetic material? Genetic material are the specific chemicals, specific molecules that is related with the heredity or related with the transfer of genetic character of parents into their offsprings. Okay. So these phenomena or this concept is related with the heredity, where the parental characters, the genetic character of parents transfer one generation to another generation, and that the process is called inheritance. That is called inheritance, that is related with the transfer of genetic character from one generation to another generation. Okay. So with the help of genes, the heredity characters are transferred from one generation to another generation. Clear? So these genes are small bead-like structures and present on the surface of chromosome, and basically genes are the part of DNA. Basically they are the DNA and that carry the genetic information in the specific language. Okay. So this topic is related with the transfer of these character from one generation to another generation. Clear? So the discoveries or the specific concept of these hereditary first given by the scientist G.J. Mendel, that is Gregor John Mendel. G.J. Mendel. First time given the concept, they was given the concept of genes, and these genes according to the Mendel, because at that time technology is not very much developed, so they do not know the exact position of genes and how genes are formed and genes have the DNA, everything that they don't know, but something is present inside the organism, and that something is responsible to carry the information of parents into their offsprings. According to the Mendel concept, these genes are called factor. उन्होंने जीन्स को क्या नाम दिया था? फैक्टर. और जो हम जिसको आज हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं उसको उन्होंने नाम दिया था कैरेक्टर. क्लियर? सो दिस कैरेक्टर एंड फैक्टर कॉन्सेप्ट, genes and chromosome in earlier time was given by the G.J. Mendel, and when G.J. Mendel studied the genes as a factor, the next branch of biology launched in the biological world, and that branch is called genetics. So what is genetics? Genetics is the specific branch of biology that deals with the study of genes, genes structure, gene function, genes types, gene position, everything that is related with the genes and the impact of genes in the population, in different population, in different organisms. That is called genetics. And this branch concept was basically given by the G.J. Mendel. So that's why G.J. Mendel called father of genetics. Okay.
So genetics branch when launched, and at present this branch is considered as the base of biology, base of inventions, base of innovations in the biology, in term of biotechnology, in term of genetic engineering, in term of cloning, in term of crop variety improvement. Many things we are able to do nowadays because of this concept of genetics that was proposed by G.J. Mendel. So the contribution of G.J. Mendel is very important in the biology. Clear? So next, how this concept was come in the mind of G.J. Mendel, we will discuss. G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो चर्च में जो पोप होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं चर्च के, वो वैसे थे। और उनके जो फ्रेंड थे चार्ल्स डार्विन, वो भी ऐसे ही धार्मिक गुरु थे, और इन लोगों को बहुत शौक था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ये इधर उधर जो है वो अपनी यात्राएं करते थे। जब भी वो किसी भी कंट्री में जाते थे तो वहाँ के जो नेचर को, वहाँ के जो प्लांट्स है, वहाँ के जो एनिमल्स है, उनको बहुत ऑब्जर्व करते थे। लेकिन जो जीजे मेंडल थे, उनको जो प्लांट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था वो प्लांट था पी। क्लियर? दैट इज द पायसम सटाइवम। ओके, क्लियर? पी, द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, नॉर्मली हम इसको मटर बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पायसम सटाइवम है। ये फेबेसी फैमिली का मेंबर है। क्लियर? तो जब पी को उन्होंने स्टडी किया तो जहां पर भी वो जाते थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत हाई फाई स्टडीज उन्होंने नहीं की थी, लेकिन वो क्यूरियस पर्सन थे। उनका जो स्किल था वो साइंटिफिक स्किल था। तो कहीं पर भी जब वो जाते थे तो नेचर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे और वेरिएशंस को स्टडी करते थे। तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज रिलेटेड विद द पी प्लांट। तो वो जिस भी कंट्री में जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वहां पर वो पी प्लांट को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करते थे, उसके कैरेक्टर्स को, उसके फ्लावर्स को, उसकी जो पॉट्स लगती है, जो फलियां लगती है, उसको वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट द वेरिएशंस आर देयर इन द पी प्लांट। कुछ कंट्रीज में वो गए तो वहां पर उन्होंने देखा पी प्लांट का हाइट बहुत ज्यादा है। क्लियर? हाइट ज्यादा है। कहीं पर देखा प्लांट का हाइट जो है वो बहुत कम है। कहीं पर उन्होंने देखा कि सीड जो है एकदम स्मूथ गोल है, और कहीं पर उन्होंने देखा सीड जो है वो ब्रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। कहीं पर उन्होंने देखा कि जो फ्लावर है उसका कलर जो है वो व्हाइट है। कहीं पर देखा फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल है। कहीं पर उन्होंने देखा सीड का जो अंदर का कॉटिलीडन है वो येलो है। कहीं पर सीड के अंदर का कॉटिलीडन जो है वो ग्रीन है। कॉटिलीडन, सीड को जब आप दो पार्ट में तोड़ते हैं तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है दैट इज द कॉटिलीडन, और वो कॉटिलीडन कहीं पर येलो है, कहीं पर ग्रीन है। कहीं पर जो है पॉड जो है वो टर्मिनल लग रही है, पॉड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर लग रही है फली, और कहीं पर जो है वो एक्सियल पोजीशन पर लग रही है। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स दे ऑब्जर्व्ड इन द पी प्लांट, एंड वन क्वेश्चन कम्स इन देयर माइंड, दिस पी इज पी and its genus is Pisum, its species is Sativum, belongs to the same family Fabaceae. Then why these much variations are present in this plant? Is environmental factors are responsible? So they curiously study the environmental factors where this plant is commonly available. Not much differences are there, but why these variations are present in this plant? At that time they are very busy in their religious work, so they do not have the time to perform their activities to silence their curiosity. So at that time what they do, वो जहां पर भी जिस भी कंट्री में जाते थे वहां से जो भी पी वैरायटी के सीड उनको अवेलेबल होते थे ड्राई फॉर्म में, वो सीड वो अपने पॉली बैग में पैक कर लेते थे, पॉलीथीन बैग में उसको पैक। जैसे मान लीजिए कहीं पर गए, कोई एक कंट्री है वहां पर गए, कोई सीड उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उस सीड उन्होंने किस कैरेक्टर के लिए कलेक्ट किया है, ये जो सीड है ये टॉल प्लांट का सीड है, ऐसा उन्होंने उसको लेबल करके अपने पास सेलेक्ट कर लिया। दूसरी कंट्री में गए, उनको कोई सीड मिला, वहां पर प्लांट वही है सेम, सारे कैरेक्टर सेम है, लेकिन प्लांट का हाइट जो है वो कम है, तो उन्होंने उसको एज अ ड्वार्फ, क्लियर, एज अ ड्वार्फ प्लांट उन्होंने उसको अपने पास कलेक्ट करके रख लिया, उसको लेबल करके रख लिया। ऐसे जब पूरा उनका वर्क जो है वो रिलीजियस वर्क कंप्लीट हुआ, सारी कंट्रीज उन्होंने घूम ली, उनके पास टोटल 7 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर जमा हुए? टोटल 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर कैसे जमा हुए? पहला कैरेक्टर उनको हाइट मिला, सेकंड कैरेक्टर उनको कॉटिलीडन का कलर मिला, क्लियर, थर्ड कैरेक्टर उनको सीड का शेप मिला, फोर्थ कैरेक्टर उनको
पॉड के पोजीशन मिला, क्लियर। फिफ्थ कैरेक्टर उनको फ्लावर का कलर मिला। ऐसे टोटल मिला के उनको 7 कैरेक्टर वेराइटीज जो है ये 7 कैरेक्टर में मिली। जब उन्होंने हाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ऑल ओवर वर्ल्ड पी जो है वो 2 हाइट में मिलता है। एक प्लांट का हाइट बहुत ज्यादा होता है और एक प्लांट का हाइट जो है वो बहुत कम होता है। तो उन्होंने कैरेक्टर के अपने पास 2 फैक्टर ले लिए, 2 कैरेक्टर चूज कर लिए, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। जो वैरायटी उनको मिली थी वो जो पैक करके लाए थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने निकालिए। कॉटिलीडन का कलर, तो बोले एक कॉटिलीडन का कलर मिला येलो और एक कॉटिलीडन का कलर मिला ग्रीन, क्लियर। फिर सीड राउंड मिला, क्लियर, व्रिंकल्ड मिला। ऐसे टोटल दो पेयर में उनको कैरेक्टर्स जो है उनके पास अवेलेबल हुए। आफ्टर व्हेन दे फ्री दे काउंट द कैरेक्टर, टोटल 7 कैरेक्टर्स आर देयर एंड दीज कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन 2 कंट्रास्टिंग पेयर, clear, contrasting pair, one pair after their experiment they classify these pair as dominant and as recessive. We further study which characters are dominant and which characters are recessive. Now the next step that was followed by the G.J. Mendel, now they are free, अब वो free हो चुके थे, so they perform their activities, they perform their experiments and their experiments are related with the cultivation techniques. उन्होंने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक डेवलप की, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स। वो उन्होंने उनका अपना खुद का डिस्कवरी था, उन्होंने खुद के अपने लिए वो मेथड जो है वो बनाई थी। मेथड बनाने का मेन पर्पस यही था कि नॉर्मली अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो जो सीजनल क्रॉप्स होती है, किसी को डेवलप होने के लिए 6 महीने लगते हैं, किसी को डेवलप होने के लिए 1 ईयर लगता है, तो वो टाइम लिमिट जो है वो कम करना चाह रहे थे और अकॉर्डिंग टू अवर विल, हमारी विल के अकॉर्डिंग हम जो कैरेक्टर चाहे वो डाल सके, जो कैरेक्टर चाहे वो फ्यूज करवा सके। अगर नेचर पर डिपेंड होंगे तो नेचर अपने विल के अकॉर्डिंग काम करवाएगा और वो चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट है या जो भी प्रोसेस है वो मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं खुद उसको कंट्रोल कर सकूं। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो मेंडल ने कैसे ये टेक्निक्स फॉलो की, कैसे कल्टीवेशन किया, देखिए आप। सबसे पहले उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए थे वो कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग पेयर बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पेयर उन्होंने लिया था हाइट। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो गार्डन एरिया था उसको यूज करना चालू किया एज अ लेबोरेटरी। अब उन्होंने क्या किया, पहला कैरेक्टर लिया था हाइट, क्लियर। इस हाइट कैरेक्टर में उन्होंने 2 प्लांट लिए, 2 सीड लिए, टॉल और ड्वार्फ, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही 2 थे। अब उन्होंने क्या किया, ये जो एग्रीकल्चर फील्ड थी, इस एग्रीकल्चर फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पर उन्होंने लगाए टॉल प्लांट के सीड और यहाँ पर उन्होंने लगाए ड्वार्फ प्लांट के सीड। अब सीड लगाए, सीड जर्मिनेट हुए, प्लांट बने, प्लांट में फ्लावर आए और उनको नॉर्मल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस था वो मालूम था कि पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठेंगे, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, मैं चाहता हूं कि ये ड्वार्फ प्लांट के पॉलन ग्रेन इस प्लांट के पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट से फ्यूज हो, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ड्वार्फ प्लांट था उसका फ्लावर है, मान लीजिए ये उसका फ्लावर है, क्लियर। ये फ्लावर में लगे हैं एंथर, और एंथर वो साइट होती है फ्लावर की जहां पर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेट। जैसे हमारी जनरेशन में मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम होता है, ऐसे प्लांट जनरेशन में जो मेल गैमेट होता है दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। तो जब भी ये एंथर के अंदर की सेल मियोटिकली डिवाइड होगी तो वो पॉलन ग्रेन बनाएगी। पॉलन ग्रेन बनेगा तो ये एंथर बर्स्ट हो जाएगा और सारे पॉलन ग्रेन उड़कर बाहर आ जाएंगे। अब उड़कर अगर वो बाहर आ जाएंगे तो फिर वो तो एयर में स्प्रेड होंगे या किसी एनिमल से स्प्रेड होंगे या किसी बर्ड से या किसी इंसेक्ट से, फिर वहां पर मेंडल का कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं था, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेंडल ने क्या किया, वो कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने ये जो एंथर था इमैच्योर फॉर्म में बर्स्ट होने से पहले ही उन्होंने इमैच्योर एंथर को रिमूव कर दिया। इमैच्योर एंथर दे रिमूव्ड, क्लियर। So how they removed these immature anther? ये immature anther को उन्होंने कैसे रिमूव किया? With the help of needle and forceps। चिमटा होता है और निडल होती है, उसकी हेल्प से उन्होंने ये इमेच्योर एंथर को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद अपनी लेबोरेटरी में उन्होंने एक स्पेसिफिक कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उसको स्टोर करके रख लिया।
अब देखिए प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगी, ये एंथर यहाँ पर भी बस्ट हो गए, इसमें से भी पॉलन ग्रेन निकलेगा, लेकिन वो इधर उधर उड़कर कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? तो पहला काम उन्होंने करा, मेल गैमेट को अपने पास प्रिजर्व कर लिया। अब सेकेंड, वो चाहते थे कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है वो इस फीमेल पार्ट पर आकर गिरे। अब ये फ्लावर जो है, मान लीजिए ये ऐसा लगा हुआ है, इसका ये फीमेल फ्लावर है और ये इसका स्टिग्मा है। जब भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आकर बैठते हैं, फिर इस स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर ओवरी में जाती है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर हमको सीड अवेलेबल होते हैं, फ्रूट सीड अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या था कि पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़कर आएंगे और स्टिग्मा पर बैठेंगे, लेकिन वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर बैठे, इसके स्टिग्मा पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन नहीं बैठे, क्योंकि मुझे इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पर बैठाने हैं, डस्ट करने हैं, इन दोनों के बीच में मुझे फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सेकेंड प्लांट था जिसको उन्होंने एज अ फीमेल सिलेक्ट किया था, पी जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल एक फ्लावर में भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्लांट को उन्होंने यूज किया एज अ फीमेल और इस प्लांट को यूज किया एज अ मेल, क्योंकि इसके उन्होंने निकाले पॉलन ग्रेन और इसका वो यूज करने वाले हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर नहीं बैठे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया, पॉली बैग से उन्होंने इसको कवर कर दिया। क्लियर? अब क्या होगा, जब तक वो ये पॉलीथीन बैग खोलेंगे नहीं तब तक इस पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर नहीं बैठ सकता। पहली प्रोसेस जिसमें उन्होंने इमेच्योर एंथर को फॉर्सेप और नीडल से अलग कर लिया, दैट इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। उनकी क्रॉस की टेक्निक है, क्रॉस टेक्निक में फर्स्ट टेक्निक है इमस्कुलेशन, ओके। सेकेंड टेक्निक इज द बैगिंग। बैगिंग में भी हमने क्या किया, जो स्टिग्मा है उस पर कोई अदर पॉलन ग्रेन आकर फर्टिलाइज ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। एंड थर्ड वन इज द टैगिंग। क्लियर? व्हाट इज टैगिंग? वो थोड़े ओल्ड एज पर्सन थे, कौन से प्लांट को मेल लिया, कौन से प्लांट को फीमेल लिया, कौन सी डेट में एंथर निकाले, कब एंथर बस्ट हो गए, कब मुझे स्टिग्मा पर डस्ट करना है, ये सब कुछ वो भूल जाते थे और प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो सारा उनको प्रॉपरली मेमोराइज्ड रहे, इसके लिए वो क्या करते थे, एक बैनर जैसा जो हम बनाते हैं वो बैनर जैसा बना के उस पर सारा डेट टाइम सब लिख के वो जो प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस प्लांट के साथ उस टैग को लगा देते थे, to remind all the things properly, and that process is called tagging. Now the steps are clear. The crossing techniques followed by the Mendel for controlled reproduction. उनका reproduction method कैसा था? Controlled reproduction. And that controlled reproduction method is called cross. उसको ऐसे represent करते हैं. And name is cross. Controlled reproduction method followed by or the discovered by the Mendel for their experiment is called cross. And the cross techniques are emasculation, bagging, and tagging. Clear? So what they do? They utilize the pollen grain of tall plant and dust. They remove the polythene. When pollen grain comes out, anther burst. They carry the pollen grain and dust on the surface of this stigma. After removing the polythene bag, what happened? Pollen grain germinate, fertilization occurs, and the seeds are available for next generation. अब ये दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, अगली जनरेशन बनी, मटर की फलियां आई, मटर की फली में दाने आए, वो दानों को हमने ड्राई करा, वो सीड बने, वो सीड को वापस से मेंडल ने क्या किया, इस फील्ड में लगाया, जो सीड मिले, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करने से जो सीड मिले वो सीड मेंडल ने यहाँ पर नेक्स्ट जो गार्डन एरिया था, नेक्स्ट ब्लॉक था, वहां पर उन्होंने उसको सॉल्व किया। क्लियर? देन व्हाट हैपेंड, ये जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद प्लांट्स बने। अब प्लांट बने तो मेंडल ने यहाँ पर कैरेक्टर कौन से लिए थे, टॉल और ड्वार्फ। मेंडल ने 100 सीड लगाए, इस जमीन में कितने सीड लगाए मेंडल ने, 100। तो मेंडल का कैलकुलेशन था कि ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पर है तो मुझे जो सीड अवेलेबल होंगे वो 50 टॉल प्लांट बनेंगे और 50 ड्वार्फ प्लांट बनेंगे। बट इट इज नॉट हैपेंड इन द रिजल्ट। जो पहला रिजल्ट उनको मिला, दैट फर्स्ट रिजल्ट इज कॉल्ड F1 जनरेशन।
इस दोनों को फ्यूज करवाने के बाद जो पहली जनरेशन बनी उसको उन्होंने नेम दिया F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो है वो टॉल बने। क्लियर? ऑल द प्लांट्स आर टॉल इन F1 जनरेशन। मेंडल डू नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। मेंडल ने क्या किया, कोई टेक्निक फॉलो नहीं की। मेंडल ने, बिकॉज इट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट वहीं पर है, तो मेल पार्ट बना, वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर बैठा, उन्होंने कोई मस्कुलेशन टैगिंग वैगिंग नहीं किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर अगली जनरेशन मिली, फलियां बनी, सीड मिले। अब उन्होंने सीड को यहाँ पर वापस से 100 सीड को 100 किया। क्लियर? एंड व्हाट इज द रिजल्ट? जब 100 सीड उन्होंने यहाँ पे 100 किए तो 75 प्लांट टॉल बने और 25 प्लांट ड्वार्फ बने। क्लियर? 75 tall and 25 plant dwarf. Okay, so they surprised with the result and continuously they follow this cross technique again and again with their 7 character. उन्होंने कितने कैरेक्टर कलेक्ट किए थे? 7। उन्होंने रेड ग्रीन कॉटिलीडन वाला सीड लगाया, येलो कॉटिलीडन वाला सीड लगाया, दोनों को फर्टिलाइज करवाया, अगली जनरेशन में सिर्फ येलो मिले। क्लियर? उन्होंने राउंड सीड लिया, रिंकल सीड लिया, दोनों को फर्टिलाइज करवाया, अगली जनरेशन में सिर्फ राउंड मिले। These results are constant for their 7 pair characters. Clear? So finally they concluded only one character is appear in the F1 generation from these two character and another character is suppressed. Clear? So according to the Mendel, the character which is able to represent itself in the F1 generation, this generation is called F2 generation. That characters are called dominant character. That characters called dominant and the character which suppress, अब यहाँ पर कौन suppress हो गया? यहाँ पर dwarf suppress हो गया, वो आया ही नहीं generation में, तो this dwarf character is called recessive character. Clear? So on the basis of these cross technique, emasculation, tagging and bagging, the controlled method of reproduction that was discovered by the G.J. Mendel for their experiments, for their cultivation technique, that is called cross. Different techniques are there in the cross, and how they cultivate the crops, how they get the result within time. उनके पास ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को वो ज़्यादा 6-7 महीने का समय नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने कंट्रोल मैनर में अपना ही रिप्रोडक्शन टेक्निक जो है वो डिस्कवर किया। And when they cross two pair contrasting character, constantly they get only one character in the F1 generation, and then one character is suppressed in that generation. Two characters are there and only one character is available. That character is dominant, and the character which is not available in the F1 generation, that is the recessive character. In the next cross, in the F1 after F1 generation में उन्होंने क्या होने दिया? Self pollination. वहीं के वहीं प्लांट में उन्होंने इधर से उधर ट्रांसफर नहीं किया, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहीं के वहीं रिप्रोडक्शन हो गया। तो अगली जनरेशन जो मिली, दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। व्हेन दे सॉ द 100 सीड ऑफ F2 जनरेशन, 75 plants are tall and 25% plants are dwarf. Clear? So these are the results obtained by the Mendel. So next we will discuss the different terms, Mendelian terms proposed by the Mendel according to these cross.